Hey kids, very good morning to all. Welcome to Shivaji Group of Institution. Let's look at preschool online classes kids. Today's date is 19 September 2020 and day is Saturday. Hey kids, now this is the time for English recitation. Today we are going to recite an English rhyme, Two Little Dicky Birds. So kids, stand up on your place wherever you are and let's recite this rhyme. Two little dicky birds. Two little dicky birds. Kids, you have to repeat after me. Two little dicky birds sat on a wall. Two little dicky birds sat on a wall. One named Peter, other named Paul. One named Peter, other named Paul. Fly away Peter, fly away Paul. Fly away Peter, fly away Paul. Come back Peter, come back Paul. Come back Peter and come back Paul. Kids, let's revise one more time. Two little dicky birds sat on a wall. One named Peter, other named Paul. Fly away Peter, fly away Paul. Come back Peter, come back Paul. Kids, I hope you have enjoyed this rhyme. Revise it well. Thank you. Hey kids, this is your English oral class. And today we are going to learn phonetics K to T. आज हम क्या पढ़ेंगे? Phonetics K to T. In our last class, we have learned phonetic A to J. Let's start, kids. Mr. K. Mr. K क्या साउंड करते हैं kids? Mr. K says ka kite. Mr. K says ka kite. Mr. L says la lion. Mr. L says la lion. Mr. M says mama monkey. Mr. M says mama monkey. Mr. N says na nest. Mr. N says na nest. Mr. O says o orange. Mr. O says o orange. Let's revise. Mr. K says ka kite. Mr. L says la lion. Mr. M says mama monkey. Mr. N says na nest. And Mr. O says o orange. Now Mr. P says. Mr. P says pa parrot. Mr. P says pa parrot. Mr. Q says qua queen. Mr. Q says qua queen. Mr. R says ra rabbit. Mr. R says ra rabbit. Mr. S says sa sun. Mr. S says sa sun. Mr. T says ta tiger. Mr. T says ta tiger. Let's revise one more time. Mr. P says pa parrot. Mr. Q says qua queen. Mr. R says ra rabbit. Mr. S says sa sun. Mr. T says ta tiger. Yes? Learn it well. Thank you. Hey kids, welcome to next class and that is English written. Kids, take out your English notebook and open the page where I have done the setting of 19 September 2020 and day is Saturday. Kids, in our last class we have learned to draw the formation of K. Today we are going to learn to draw the formation of L. L says lamp. What is this kids? L says lamp. You have to color this object. You know very well. Now we have to read this statement carefully. Let's start. One man standing and one sleeping line. Means one man is standing and one sleeping line. One man is standing means ये एक standing man हमने draw कर दिया. Then one sleeping line. One man standing and one sleeping line. ये sleeping line है ना, आप पहले पढ़ चुके हैं. This is sleeping line. इस तरह से ड्रॉ करके हमने एल ड्रॉ करना है.
Let's start kids. One man standing and one sleeping line L. And kids, you know very well that we have to touch the upper and bottom line both carefully. बच्चों ये आपकी अपर लाइन होती है और ये बॉटम लाइन होती है, आप सभी को पता है। आपको अपर लाइन और बॉटम लाइन से टच करा के वर्क करना है। आप लोग क्या करते हो, कई बार आपने किया है कि आप अपर लाइन से टच नहीं कराते हो या फिर बॉटम लाइन तक नहीं पहुंचते हो, आपको दोनों ही लाइन को टच करा के अपना वर्क करना है, तो इसका ध्यान रखिएगा। One standing line and sleeping line means one man standing and one sleeping line L. One man standing and one sleeping line L. One man standing and one sleeping line. Again, one man standing and one sleeping line L. 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 Again, one man standing and one sleeping line L. One man standing and one sleeping line L. Kids, you have to do the same work and you have to color this object. Now I have done my work, now it's your turn, practice it well. Thank you. Hey kids, now this is the time for Hindi recitation. So kids, today we are going to recite a Hindi rhyme. छत पर देखो आया मोर. Now kids, stand up on your place wherever you are and put your hand on your waist and let's start this rhyme. छत पर देखो आया मोर, छत पर देखो आया मोर, बच्चों तुम मत करना शोर, बच्चों तुम मत करना शोर, वरना ये उड़ जाएगा, वरना ये उड़ जाएगा, पेड़ों में छिप जाएगा, पेड़ों में छिप जाएगा. Kids, let's repeat one more time. छत पर देखो आया मोर, छत पर देखो आया मोर, बच्चों तुम मत करना शोर, बच्चों तुम मत करना शोर, वरना ये उड़ जाएगा, वरना ये उड़ जाएगा, पेड़ों में छिप जाएगा, पेड़ों में छिप जाएगा. Kids, I hope you have enjoyed this rhyme. Recite it well. Thank you. Hey kids, let's start our Hindi oral class. Kids, today we will learn हिंदी स्वर आ से आहा. आज हम क्या पढ़ेंगे, आ से लेकर आहा तक स्वर पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. What is this kids? ये क्या लिखा है, छोटा अ, छोटे अ से अनार, छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम, बड़े अ से आम. किड्स, बच्चों आपको अक्षर को अच्छे से पहचानना होगा. हम आपको नेक्स्ट टाइम चित्र बनाकर यहाँ पर बताएंगे और आपको उस चित्र को देखकर इसका पहला अक्षर बताना होगा कि ये कौन सा चित्र बना हुआ है और ये किस अक्षर से रिलेटेड है. लेट्स स्टार्ट किड्स. छोटा अ, छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम, छोटी ई, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, बड़ी ई, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख, छोटा उ, छोटे उ से उल्लू. लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम किड्स. छोटा अ, छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम, छोटी ई, छोटी ई से इमली, बड़ी ई, बड़ी ई से ईख, छोटा उ, छोटे उ से उल्लू. अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में. बड़ा ऊ, बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि बाबा, री से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, ये क्या है बच्चों, ए से एड़ी, ए से ऐनक, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक. अब ओ, ये क्या लिखा है बच्चों, ओ, ओ से ओखली, ओ से ओखली, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक,
ओ से ओखली। नेक्स्ट किड्स, नेक्स्ट लाइन में आते हैं औ से औरत। इसमें देखिए बच्चों, एक ही मात्रा लगी है, इसमें कितनी मात्रा है? 2। तो ये क्या है? बड़ा औ, बड़े औ से औरत। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। और आहा अक्षर खाली, आहा अक्षर खाली। लेट्स राइट वन मोर टाइम किड्स। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा अक्षर खाली। Kids, learn it many times. Thank you. Hey kids, welcome to next class, and that is Hindi written. Kids, take out your Hindi notebook and open the page where I had done the setting of 19 September 2020 and day is Saturday. बच्चों, अपनी लास्ट क्लास में हमने जितना भी पढ़ा था ए जितना हमने रिवाइज किया था वो सारा एक बार फिर से हमने रिवाइज कर लिया। वो हमने कई बार रिवीजन किया था और एक बार फिर से रिवीजन कर लिया उसको बाकी सारे अक्षरों के साथ जो हम पहले पढ़ चुके थे। आज हम एक नया अक्षर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ऐसे ऐनक के बाद आता है। ए से एडी, ऐसे ऐनक, फिर क्या आता है बच्चों? ओ से ओखली। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ओ से ओखली। बच्चों ये आप चित्र पहचान रहे क्या है? ओ से ओखली है, ओ से ओखली। और ये ध्यान रखिएगा, ओ जब बनता है तो उसमें सिर्फ 1 लॉलीपॉप ड्रॉ करते हैं। अब चलिए इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। आपको बड़ा आ बनाना आता है तो हमने क्या किया? बड़े आ से आम बनाया पहले, कर्ली वर्ली ट्री, एंड अब 1 मैन 2 मैन, और जैसा कि आपको बताया था सिर्फ 1 मैन में हेलो हेलो कराते हैं वो बना दिया। उसके बाद उस पर हैट लगा दी। अब इसमें एक चीज हमें और क्या करनी है ऐड बच्चों, हमें जो अब देखो 1 मैन ने तो हेलो हेलो किया ना, तो 2 मैन ने तो कुछ नहीं किया, तो हम अब 2 मैन को लॉलीपॉप एक पकड़ा देंगे। तो हमने 2 मैन को एक लॉलीपॉप दे दी, मीन्स एक लॉलीपॉप ड्रॉ करनी है हमें 2 मैन पर। तो आप सभी ध्यान रखेंगे 1 मैन पर या मिड में 2 लाइन के बीच में आप नहीं ड्रॉ करेंगे, आपको सबसे लास्ट में ड्रॉ करना है। मीन्स जो सेकंड लाइन है इसी के ऊपर आपको इसकी मात्रा ड्रॉ करनी है। तो इसे सभी लोग ध्यान रखिएगा और आपको ये ओखली ड्रॉ करनी है तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसे ओखली का फॉर्मेशन। मेक बड़ा आ एंड एक मात्रा लगाई, उसे क्या बनाया? लॉलीपॉप ड्रॉ कर दिया। तो बच्चों अगर आप चाहें तो आप इसको पूरा फॉर्मेशन के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस, कर्ली वर्ली ट्री एंड अप, 1 मैन 2 मैन, हेलो हेलो, मेक अ हेड एंड 1 लॉलीपॉप। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं या आप इसे डायरेक्टली इजी वे में बोल के ऐसे कर सकते हैं कि मेक अ एंड 1 लॉलीपॉप। क्या बन गया बच्चों? ये ओ से ओखली। अगेन मेक आ 1 लॉलीपॉप, मेक आ बड़ा आ। आप सभी को बताया था ना बच्चों हमने कि बड़ा आ बोलने में आ मुंह खुलता है तो हम क्या करते हैं? बड़ा आ बनाते हैं, मीन्स ये बड़ा आ है। और जब हमारा पूरा मुंह नहीं खुलता है तो हम सिर्फ ये लिखते हैं, ये अ है ये आ है। तो मैम ने आपको ओ से उंगली बनाने के लिए क्या बोला है? आ, मेक आ। तो आपको आ बनाना है, जिसमें 2 मैन है एंड 1 लॉलीपॉप। रिपीट इट अगेन, मेक आ एंड 1 लॉलीपॉप, मेक आ एंड 1 लॉलीपॉप। अगेन मेक आ एंड 1 लॉलीपॉप। बच्चों आप सभी ध्यान से देखिएगा कि हमने पहले बड़ा आ बनाया है और उसमें प्रॉपर हेड लगाने के बाद उसके बाद हमने उसके ऊपर उसकी मात्रा ड्रॉ करी है। और ये सभी को ध्यान रखना है, अगर आपने रॉन्ग किया तो आपके नोटबुक में रेड पेन से सर्कल होगा। अदरवाइज आप इसका ध्यान रखिए कि आपको बड़ा आ पे कहाँ पे मात्रा लगानी है? 2 मैन पर। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको 2 मैन पर मात्रा लगानी है, मीन्स की मात्रा आपको ये 1 मैन ये 2 मैन, तो आपको 2 मैन पे सिर्फ मात्रा लगानी है। 1 मैन पर कोई नहीं लगाएगा या दोनों मैन के बीच में कोई ड्रॉ नहीं करेगा मात्रा। मेक आ
and one lollipop. Make a and one lollipop. Make a and one lollipop. तो बच्चों इस तरह से हमने ओसी ओब्लिक का फॉर्मेशन आज नया सीखा है। आप इसे कई बार करेंगे तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। लास्ट टाइम हम फिर आपको बताते हैं कि आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको 2 मैन पर ही लाइन मात्रा ड्रॉ करनी है। मीन्स के 1 मैन पर या दोनों लाइन के बीच में कोई भी मात्रा ड्रॉ नहीं करेगा। आपको सिर्फ लास्ट में मीन्स सेकेंड लाइन के ऊपर ही मात्रा ड्रॉ करनी है। तो बच्चों इस तरह से हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। अब आपका टर्न है, प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। थैंक यू। Hey kids, welcome to next class, that is maths written. Kids, check out your maths notebook and open the page where I have done the setting of 19 September 2020 and day is Saturday. Kids, in our last class we have learned and revised the formation of 11 and 12. हमने 11 और 12 का फॉर्मेशन ड्रॉ करना सीखा था, फिर उसके बाद उसका रिवीजन भी किया था, फिर 1 to 12 हमने फॉर्मेशन भी कर लिया था। अब आज बच्चों में क्या करना है, नेक्स्ट उसके आगे की काउंटिंग हम करेंगे। 1 से लेकर 12 तक की काउंटिंग हम कर चुके हैं। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। 100 TO, वी हैव टू राइट 1 to 13 काउंटिंग अंडर TO। लेट्स स्टार्ट। 1, you all know very well that we have to write 1 to 9 digit under ones। बच्चों ये जो हम 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग करेंगे, लिखेंगे, उसे हम O के नीचे लिखेंगे। O मीन्स हम आपको बता चुके हैं कि वंस बोलते हैं जब सिंगल डिजिट होती है, 1 डिजिट होती है तो हम उसे वंस के नीचे लिखते हैं। और जब सेकेंड डिजिट उसके साथ आ जाती है मीन्स 2 डिजिट होती है, जैसे 9 के बाद हम 10 लिखना है, 10 10, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 0 को वंस के नीचे लिख के 10 के नीचे 1 लिखेंगे। तो आप सभी इसका ध्यान रखिएगा। मीन्स 10, ये 1 और ये 10। तो 1 से लेके हम 9 तक की काउंटिंग 1 के नीचे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो देखा बच्चों आपने, हमने 10 कहाँ लिखा, 1 के नीचे 0 लिखकर 10 के नीचे 1 लिखा। एंड देन 1 1 11 1 2 12। और आज बच्चों हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, 1 3 13 का। तो क्या लिखा हमने, 1 3 13। तो चलिए बच्चों अब हम आज 1 3 13 की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 10 के नीचे क्या लिखेंगे, 1, और 1 के नीचे क्या लिखेंगे, 3। 1 3 13। तो बच्चों ये 13 किसके बाद आया, 1 1 11 1 2 12। आफ्टर 12 क्या आ गया, 13। 1 3 13। रिपीट इट अगेन, 1 3 13। तो बच्चों आप इसे ऐसे ही बोलकर करिएगा, 1, और इसको ध्यान रखिएगा कि हम 1 किसके नीचे लिख रहे हैं, 10 के नीचे। 1 एंड देन 3, 1 3 13, 1 3 13। वन मोर टाइम, 1 3 13। तो बच्चों इस तरह से आपकी 13 की भी काउंटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसे अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा। नाउ इट्स योर टर्न, प्रैक्टिस इट वेल। थैंक यू। Hey kids, let's start our maths oral class. Yesterday we have learned counting 1 to 20. So today we will learn counting 1 to 13. Kids, let's start. Start a video please. Okay, fold your hand. Very good. So let's start kids. 1, repeat after me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18
19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30. Kids, repeat it many times so that you can learn it well. You have to learn on counting 1 to 30. Thank you. Hey kids, welcome to next class and that is GK oral. Kids, as you all know that GK is an oral subject. So kids, today we are going to learn the objects or things you see in the sky. आज हमें वो ऑब्जेक्ट या वो थिंग लर्न करनी है जो कि हम आसमान में देखते हैं. तो बच्चों हम आसमान में क्या क्या देखते हैं, कौन कौन सी चीजें जो हम आज स्काई में देखते हैं. स्काई में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सन. क्या देखते हैं, आफ्टरनून में हमारा सन दिखता है ना हमें. जब मॉर्निंग होती है तो सबसे पहले सनराइज होता है तो सन दिखता है हमें, सूरज ज्यादा दिखते हैं. एंड आफ्टर दैट इन द नाइट हम क्या देखते हैं, एट नाइट हमें देखने को मिलता है चंद्रमा, चंद्रमामा मीन्स मून. हमें क्या देखने को मिलता है, नाइट में हम देखते हैं मून और दिन में क्या देखते हैं बच्चों, सन. तो एक तो हो गया सन, दूसरा हो गया मून एंड आफ्टर दैट ये क्या है बच्चों, स्टार्स. नाइट में हमें क्या देखने को मिलता है, स्टार्स बहुत सारे होते हैं ना आसमान में, तो वो भी कहाँ होते हैं, स्काई में ही होते हैं. तो स्काई में हमें 3 थिंग्स पता चली, सन, मून, स्टार्स. और बच्चों चिड़िया जो होती है, बहुत चिड़िया है या कोई भी बर्ड्स हैं, कोई भी पक्षी हैं, वो कहाँ उड़ते हैं, वो आसमान में उड़ते हैं. तो हम उन्हें आसमान में ही तो उड़ते हुए देखते हैं ना. तो बच्चों ये बर्ड्स भी क्या हुई, आसमान में उड़ने वाली, मीन्स स्काई में ही हम उन्हें देखते हैं. तो थिंग्स यू सी इन द स्काई में बर्ड्स भी आ गए. सो किड्स, these 4 things you see in the sky: sun, moon, stars and birds. ये क्या है बच्चों, क्लाउड. जब भी कभी रेन होने वाली होती है या नॉर्मली ऐसे थोड़ा भी वेदर चेंज होता है तो क्या होते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स आप देखते हो, कभी व्हाइट देखते हैं, कभी ब्लैक देखते हैं. तो क्लाउड्स भी बहुत डिफरेंट टाइप के हमें दिखते हैं. तो क्लाउड्स भी कहाँ होते हैं, स्काई में ही तो होते हैं ना. आसमान में हम बादल देखते हैं तो ये बादल है, तो ये क्लाउड्स भी हम किसमें काउंट करेंगे, थिंग्स यू सी इन द स्काई. अभी लास्ट है एरोप्लेन. बच्चों एरोप्लेन जब भी आपने उड़ते हुए देखा है, एरोप्लेन कहाँ देखा है, स्काई में तो देखते हैं ना हम, या फिर वो लैंड करता है तो जमीन पर आता है. लेकिन उड़ता कहाँ है बच्चों, हम उसे मोस्टली कहाँ देखते हैं, स्काई में. तो ये भी क्या हो गया, थिंग्स यू सी इन द स्काई, एरोप्लेन. सो किड्स, लेट अस लर्न थिंग्स यू सी इन द स्काई: सन, मून, स्टार्स, बर्ड्स, clouds and aeroplane. So kids, you can learn these objects with the help of your finger. Let's start. Sun, moon, stars, birds, aeroplane और cloud. आप कोई भी 5 things लर्न कर सकते हैं, उसमें aeroplane भी ले सकते हैं, cloud भी ले सकते हैं. तो आपको जो इजी लगे आप उसे लर्न करिए. Let's revise it again. Sun, moon, stars, birds, clouds and aeroplane. So kids, you have to learn these things, learn it well. Thank you.